Welcome students, I am again with you with a very small and beautiful geometry topic related to your equilateral triangle and circle. चलो चलते हैं, पहले आपको एक थ्योरम बताता हूँ और एक रिजल्ट बताता हूँ, फिर उसके प्रूफ पे चलेंगे. ओके, इफ let this is a circle and one equilateral triangle is inscribed in it. Okay, feel it. It's a what will be the radius of this circle? This will be radius of this circle. Okay, take it capital R and side is A. What is the relation between side and radius? And if this is an equilateral triangle, a circle is inscribed in an equilateral triangle. Suppose, forgive me for my drawings. Okay, so now the radius will be of this. This I have denoted with the small r, and this side is A. Okay, our today's main purpose of this video is to find the relationship between the side and radius of the circles when the circle is outside the equilateral triangle and circle inside the equilateral triangle. ये दोनों रिजल्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ओलंपियाड में, इवन योर बोर्ड एग्जाम्स में 8th, 9th, 10th के हर कहीं पर भी यूज़ हो सकते हैं, कहीं भी एज ए सब रिजल्ट यूज़ होते हैं. ठीक है, देखो ध्यान से, चलो यहाँ से चलते हैं, पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे. बिफोर बिगिनिंग ऑफ दिस I want to give you some insightfulness about the equilateral triangle. This is the equilateral triangle. Each side is, let's A, since it's equilateral triangle. If a perpendicular is drawn from any of the vertex to opposite side, let this be H. What is value of H in terms of A? Okay, if you put a Pythagoras theorem in this triangle, since this is a right angle triangle, or Bodhayan theorem you can say, or this will be A by 2 since this perpendicular from vertex divides the equilateral triangle into two congruent triangles, or by the main way of symmetry you can say this will be half of this side. And using the Pythagoras theorem in this triangle, you can say this a square is equal to, or directly you can say a square minus a by 2 का whole square is equal to h square. ठीक है, from here you can reduce this, as since a is hypotenuse, this is base or perpendicular, whatever you want to take, और this square the longest side के square में से छोटी side का square जाएगा तो उसका square बच जाएगा. When you will simplify this, you will get to this. अगर इसका square करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, square by 4 होगा, तो we'll take LCM here 4, तो आपके पास मिलेगा 4a square minus a square is equal to h square, और 3a square by h square 4 is equal to h square, और from here you can say root 3a by 2 is the height. ध्यान से देखिए, ये h square था, ये जब स्क्वायर रूट जाएगा a square का, ये पूरे का पूरे का इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो रूट 3 का रूट 3, a square का स्क्वायर रूट a, और 4 का 2. तो from here you can say that h is root 3 by 2 times of the side. Okay, फिर using this we can find the area of equilateral triangle. चलो फिर से एक बार टॉपिक नहीं करवाना पड़ेगा मुझे, इसी में ये कर लेते हैं. It will take a 1 minute extra. Half into base into height. Base is what? Half base is what? A.
बेस पूरा ए ही है और हाइट है √3a/2, हाफ इंटू पूरी ट्राइंगल का एरिया की बात कर रहे हैं आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू a इंटू √3/2, you will get nothing but √3a²/4, which is very famous proof for area of equilateral triangle. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, ये चीजें आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ओके। और ये हाइट अभी यूज करेंगे इसी को, हाइट इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ a, तो इसको यूज करेंगे। ये तो एक आपके पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आल्सो नोट कर लो, इसको याद रखना एवरी टाइम, मतलब हर एक जैसे ही इंट्रोड्यूसिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आती है तो ये चीज़ उसी टाइम आपको समझ में आनी चाहिए, तो 7th ग्रेड हो चाहे 8th ग्रेड हो, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अगर वी आर गोइंग टू यूज दिस वन, इसलिए आई एम रिमूविंग एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस। In this, okay, H, okay, now we're going to draw this perpendicular from here, okay, same this, since this is A, that whole will be going to, this whole blue is going to be √3, whole is √3a/2, and this is nothing but radius only, यहां तक रेडियस ही है, तो दिस लेफ्ट ओवर पोर्शन इज गोइंग टू बी √3a/2 -r, ठीक है। देखिए, सिंस दिस इज द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इज रेडियस ओनली, दिस विल बी लेफ्ट विद, एंड दिस इज नथिंग बट a/2, ये आपके पास a/2 है। अगर आप एक 8th ग्रेडर या 9th ग्रेडर स्टूडेंट है तो आपके पास आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करने की जरूरत नहीं। अगर 10th ग्रेड में होते तो आप सिंपली ट्रिग्नोमेट्री से भी इसके रेशियो फाइंड आउट कर पाते, ठीक है। वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम सॉल्व करते हैं, ओके। दिस वी आर टेकिंग दिस ट्राइंगल, दिस ब्लू शेडेड ट्राइंगल, वेयर everything is in terms of a and r, and we have one equation and two variable, definitely we are going to get a relationship out of this, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो what we'll get, r² is equal to √3a/2 -r का होल स्क्वायर, देखिए, प्लस a/2 का होल स्क्वायर। सिंपली अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, r² इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर, आपको पता ही है, a - b का होल स्क्वायर इज a² प्लस b² -2ab। वी आर गोइंग टू यूज दिस, a² विल बी √3a/2 का होल स्क्वायर, a² प्लस b² r² -2 √3a/2, b इज नथिंग बट r प्लस a²/4, इसका स्क्वायर खोल लिया, a²/4, ओके। ध्यान से देखिए, आपके पास इसको ब्रैकेट खोलोगे तो r² इज इक्वल टू 3a²/4 प्लस r² -2 will get cancelled, √3ar plus a²/4, ठीक है। From here you can say r² get cancelled with r², and from here you can write simply this a²/4 and √3a²/4, देखो like terms है, डिनोमिनेटर सेम है, you will get add 4a²/4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 3a²/4 या 3/4 और 1/4 क्या होता है, 1 होता है, तो दिस बोथ इनको देखिए, इसको 0 इज इक्वल टू, देखो यहाँ से 0 हो गया एक, ठीक है, ये इसके कैंसिल हो गया, सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0, बच्चे कई बार 1 लिख देते हैं, गलती कर देते हैं, तो दिस इज नथिंग बट a², ये और सोलो का ब्लू वन, माइनस इस तरफ माइनस
√3AR। अगर हम इसको यहाँ पे लिख कर लेते हैं सपोज दिस, तो यू कैन राइट A² इज इक्वल टू √3AR। A इज इक्वल टू कैंसिल विद, तो याद रखिए when equilateral triangle is inscribed in a circle, A is nothing but a √3 times of radius। देखो ये बड़ी है, इससे बड़ी है, तो √3 इज द वैल्यू ऑफ मोर देन 1। तो आप रफली आप कह सकते हो इफ दिस इज 10 सेंटीमीटर, सपोज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द साइड ऑफ इक्विलेटरल? √3 टाइम्स, तो √3 इंटू 10 विच इज नथिंग बट अगर √3 की वैल्यू 1.732 है, इंटू 10 करेंगे, रफली वैल्यू है ये, इरेशनल नंबर है, तो आपके पास 17.32 सेंटीमीटर बनेगा ये। अगर आपके पास इफ साइड इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द रेडियस, यू कैन सिंपली साइड दे रखी हो, मान लिया 20 सेंटीमीटर साइड दे रखी हो, आपको रेडियस फाइंड आउट करनी, बस √3 से डिवाइड कर दोगे। तो देखो बड़ी चीज़ फाइंड आउट करनी है, √3 से मल्टीप्लाई, छोटी चीज़ फाइंड आउट करनी है, √3 से डिवाइड। इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट है, बहुत जगह काम आता है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स इन 10th क्लास, सर्कल्स चैप्टर इन 9th 10th, और वेर एवर इन यूर competitive exams, engineering, interior designing, everything way of life है ये सब चीज़ें। ये ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तभी ये चीज़ पढ़ोगे। आप किसी भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इवन इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज, दिस मच knowledge of mathematics should be available with everyone. Okay, now come to this. अगर अब हम ध्यान से देखो, अगर आपको एक तो रिजल्ट ये हम मान ही लेते हैं पहले, क्योंकि दिस वीडियो विल बिकम लॉन्गर, अदरवाइज फिर एक अलग से वीडियो में हम वो प्रूव करेंगे। तो आपको पता है ये और यू कैन से सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इनटू 2:1। ठीक है, तो देखो अगर इसके बाहर सर्कल था, इसके अगर बाहर सर्कल है तो उसके लिए रेडियस ये होगी, देखिए ध्यान से, कैपिटल R, और अंदर सर्कल है तो उसके लिए रेडियस स्मॉल r। और कैपिटल R का और साइड का आपके रिलेशनशिप पता है, कैपिटल R √3 टाइम्स ऑफ कैपिटल R इज A इसका, और आपको पता R इज डबल टू दिस बिकॉज देखो 2:1। और यू कैन से आप ये भी, इससे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर अंदर सर्कल है और बाहर सर्कल है, ये बाहर की रेडियस अंदर वाले सर्कल की रेडियस का डबल होगी तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में जाता है। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा इस एरिया का, इस सर्कल का और बाहर वाले सर्कल के एरिया का रेशियो पूछ लिया जाए तो आप सिंपल कह सकते हो, देखते ही बता सकते हो 1:4। तो फिर कहेंगे पेपर मुश्किल था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बड़े मुश्किल आने लगे। कुछ नहीं है, अगर आपके बेसिक्स ठीक हैं, आपको सब चीज़ आपने समझ के कर रखी है, तो विद इन जस्ट ग्लांस ऑफ योर देखते ही आपको आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गया। ओके, अगर हम R को विल रिप्लेस विद R विद 2R, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r इज इक्वल टू A, तो 2√3R is equal to A. This is very important result when circle is inscribed in equilateral triangle. Here was the triangle was inscribed in a circle. ध्यान से देखिए, we are just discussing about, okay, मिटा दो इसको, because I have just taken this relationship between, using this result only we can say this capital R is double of small r, so then capital R can be written as 2R. तो इस side of this side, अगर आपको ये रेडियस फाइंड आउट करनी है, इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड दिस रेडियस ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड, तो साइड गिवन है तो 2√3 से डिवाइड कर देंगे, रेडियस गिवन है, साइड फाइंड आउट करने 2√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस देखो दोनों रिजल्ट बहुत इजी, बहुत यूजफुल। ओके, सब कुछ आपको इस बारे में क्लियर हो गया होगा। अगेन आई विल कम विद टू यू विद न्यू कॉन्सेप्ट
related to general mathematics and the proof of the theorems. Thank you. Have a nice day and please keep sharing with your friends. Thank you.